बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि यहाँ बरतानिया में साउथ पोर्ट में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि 3 बच्चियों को, जो कि कम सन बच्चियाँ हैं, उनको कत्ल किया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तो हम एज़ इस्लाम के खादिम अमन और सलामती के पैगाम को यहाँ पर लेकर आए हैं और फिर कुछ शरपसंदों ने मस्जिद पर आकर हमला किया, लेकिन यहाँ की कम्यूनिटी ने बड़ा अमन का और सलामती का पैगाम दिया और ख़ुद यहाँ जो कम्यूनिटी थी उन्होंने आकर मस्जिद की दीवारों को रिपेयर किया। ये एक अच्छा साइन है। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक गलत प्रोपोगंडा फैलाया गया कि जो कातिल है उसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, जबकि उसका ताल्लुक़ ना इस्लाम से ना मुस्लिम वर्ल्ड से है। तो हम ये क़ुव्वतें जो दुनिया में नफ़रत फैलाती हैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर उन क़ुव्वतों के साथ जो अमन का पैगाम देती हैं, मोहब्बत का पैगाम देती हैं और इस्लाम पूरी दुनिया में अमन और सलामती की बात करते, जुल्म कहाँ पर भी हो हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और बच्चे, दुनिया का कोई भी बच्चा हो उसे टारगेट किया जाए, चाहे वो अरब में हो, अजम में हो, यूरोप में हो, एशिया में हो, बच्चों के ऊपर हमला करना ये हैवानियत है और हम इस हैवानियत की मजम्मत करने आए हैं। This shows the spirit of this community. The Jewish Jewish leaders, Christian leaders, Muslim leaders are here. But I'm overwhelmed and happy and blessed to have all these people around me. Okay, thank you. Imams from across the country, British Muslims, faith leaders from across communities, in particular the Christian and the Jewish community, to show solidarity to the mosque here that was attacked on Tuesday, but more importantly to pay our respects to the families of the victims of the horrific attack on Monday. After this visit to the mosque, we will be going to lay our flowers and pay our respects to the place which has been dedicated to show respects to the... I want to say thank you on behalf of the faith communities in Sefton to everyone for coming today, and some of you have come from a long way. I want to say thank you for coming and wanting to pay your respects and to return the kindness, and so thank you. May I ask Rabbi Robin to say a few words, please? So there's a teaching that goes across both Judaism and Islam that says that when one life is taken, it's as if the entire world has been destroyed. This week, 3 worlds were utterly destroyed, and we're feeling the ripple effects of that in our bodies and hearts today and onwards. What is clear is it's okay to be angry and fearful and confused. What is not okay is to turn that anger and that fear outwards. So I've come alongside the Southport Jewish communities to stand in solidarity with my Muslim sisters and brothers at the attack this week. It is simply not okay. It is not what is needed in this moment. They and we all deserve better. There needs to be time to heal and to be in community. We are stronger together. Concluding words. Well, thank you very much. On Tuesday night, I thought I'm the unluckiest man in the whole of the country. On Friday evening, I feel the luckiest man in the whole of the country. Look at all these beautiful people. Look at all these faces and different face and different, we have here people from the church and from the synagogue, and we are old friends, by the way, with some of the leaders that you see behind you here. But it is not about Southport Mosque. It is not about our suffering. We should have been focused all along about these poor people who have suffered in the most horrific way. And we should have been standing here giving him as much support as we can. We should have been standing here giving him prayer, pray for them, supporting them, focusing on them. And instead, these people try to destroy what is so beautiful about this community.
on behalf of the people in here in Southport, in particular, the Muslim in particular, we can't thank the neighbors and the people around us. This beautiful community came together, and before we came to clean here, they were here 6 o'clock in the morning, cleaning and sweeping and asking what can they do in order to, help. So we thank them very much, and the last word is to say, they will never win. Hate will never prevail. Always love will prevail in the end. Thank you very much, and I appreciate everybody here. And I would like to give a hug to each and every one. Yes, sir. 3, 2, 1, Thank you. Oh, you are On these occasions, I'm so glad I'm teaching the team. Oh, wow. I was so excited. Being here, seeing all these flowers, and remembering life is lost. And our faith, Islam, says that if you take one life, it is as if you have killed the whole of humanity. And if you save one life, it is as if you have saved the whole of humanity. These British Muslim scholars who come from across the country, lives being saved in this country. We want to see life being flourished in this country. And those who wish to exploit people's emotions, shamelessly exploit the collective grief that the country is going through, they deserve to be defeated, and we can only defeat them if we come together in solidarity to say that we have more in common than why we have a Sikh representative, we have people of other faiths and beliefs who are standing here together, and extremism happening on our streets, whether Southport or anywhere else in the country. So may God help us all to remain together for the safety and security. But it is still something that we would love to do, and we appreciate that everybody should keep away and give the families time to grieve. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम स्कॉलर के प्लेटफॉर्म से
बताइएगा मुझे रिकॉर्डिंग मेरे साथ बताइएगा जब शुरू ब्रिटिश मुस्लिम स्कॉलर के प्लेटफॉर्म से साउथ कोर्ट में हाजिर हैं। यहाँ पर वो होलनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ जब 3 कलियों को मसला गया और एक जालिम शख्स ने 3 जानों का कत्ल किया। हम यहाँ तमाम अपने बुज़ुर्गों, असलाफ, स्कॉलर्स, कम्युनिटी लीडर के साथ हाजिर हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कुरान मजीद सूरह माइदा में फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम इस्लाम अमन और सलामती का हम आहंगी का दीन है। हम हर किस्म की जालमाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं। बच्चे ये फूलों की तरह होते हैं और हम किसी को इन फूलों को जो है वो तोड़ने की इजाज़त नहीं देते। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी बच्चों को मारा जा रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। यहाँ एक अलामती तौर पर हम हाजिर हुए हैं कि यहाँ हम इकट्ठे हैं और बच्चों के ऊपर इस तरह सफाकाना हमला होना, तो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए ताकि कोई जालिम जो है इन बच्चों पर हमला न कर सके और इन नन्हे मुन्ने फूलों को जो है वो मुरझा ना जाया जा सके। मेरे मुख्तलिफ हमारे उलमाए किराम में 1-2 मैसेज इनके लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साउथ कोर्ट में हम हाजिर हैं उस मकाम पर जहां गुज़िश्ता दिनों 3 मासूम बच्चियों को कत्ल किया गया। यकीनन इस शहर की फ़िज़ा सोगवार है, यहाँ बसने वाली कम्युनिटी सोगवार है और हम अफसोस का इजहार करते हुए, यकजहती का इजहार करते हुए आज ब्रिटिश मुस्लिम स्कॉलर्स की जानिब से यहाँ पर हाजिर हुए। मिनाप की नुमाइंदगी मौजूद है, इंटरफेथ के लोग मौजूद हैं और आज सब इस अफसोस और दुख की घड़ी में यहाँ पर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और इस्लाम जिसका माना ही पीस और अमन है और इस्लाम ये कहता है कि अगर कहा है आज हम सब इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हैं नफ़रत के ख़िलाफ़, हेट्रेड के ख़िलाफ़, टेररिज़म के ख़िलाफ़, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मोहब्बतों को रिवाज दें, नफ़रतों को मिटाएं और ऐसे मौक़े पर मिलजुल कर इकट्ठे होकर यूनिटी का पैगाम दें। सदर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो सरापा रहमत है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए दोस्ती और रहमत बना के भेजा है। महबूब अलैहिस्सलाम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत लव और प्यार करते थे। तो ये जो बच्चे एक जालिम शख्स ने जुल्मन जिनको इन बच्चों को कत्ल किया है, ये शख्स जालिम है। मैं दुआ करता हूँ गवर्नमेंट बरतानिया से इस जालिम को इन मासूम कलियों को कत्ल करने की करारवादी सज़ा दी जाए ताकि बरतानिया के अंदर ये बात एक ऐसी बन जाए कि किसी को भी, वो बच्चे मुस्लिम हो, वो बच्चे क्रिश्चियन हो, वो बच्चे हिंदू हो, वो बच्चे सिख हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, बच्चे सबके बच्चे साझे होते हैं। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं अल्लाह इस मुल्क के अंदर पीस रखे, इस मुल्क के अंदर अमन रहे, इस मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की दे। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के खैर खा हैं। हम नहीं चाहते किसी भी अंदाज से इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो। राइट विंग वालों ने जो शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया है, गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि उन्होंने इस्लामी फोबिया को उन्होंने हवा दी है, उनको कंट्रोल किया जाए और पूरे मुल्क के अंदर पीस और अमन कायम किया जाए। Islam is humanity and humanity is Islam. Islam is peace, security, shelter and protection are the names of Islam. Islam does respect all of the life, regardless of the faith, the creed, the culture, the land, the color. Not only of human beings, but even the animals, insects and even the trees. We do condemn this activity, this barbaric activity, and we are with the humanity and with the love and with the devotion. आज हम साउथ को
सैर व तफरीह बस किया जाता है। बरतानिया से साउथ कोर्ट हमारे जो नवाज वो जो यहाँ पर सैर व तफरीह इंतज़ाम किए जाते हैं, समझा जाता है कि बड़ा मेहमान नवाज शहर है और यहाँ बड़ी जो यहाँ पर वाक़या हुआ है बड़ी समाज में समझ सकते हैं और हादसा हुआ है उसकी सारी जमा हुई है और यहाँ पर वायलेंस दिखाई गई है। मैं नहीं समझता कि साउथ है ये शिद्दत पसंद किस्म के लोग ख्यालात के लोग थे जिन्होंने यहाँ पर फसाद बर्बाद किया है, वरना ये बड़ी मेहमान नवाज यहाँ पर कम्युनिटी है जो हमेशा बाहर से लोग साउथ कोर्ट बीच में सैर तफरीह के लिए आते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और बड़ी अच्छी होती है। बड़ा अफसोस हुआ है अल्लाह ताला यहाँ पर हम लोग आवाज़ का के साथ इज़हार तज़ियत इज़हार हमदर्दी करता हूँ जिनके नन्हे मुन्ने जो है एक हादसे के अंदर फौत हो गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ साउथ कोर्ट के उन लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने ये जो एक हवा चली थी उसको एकदम रोका। मस्जिद पे एक हमला हुआ लेकिन साउथ कोर्ट के लोगों ने आगे बढ़कर मस्जिद को अपने हाथों से मरम्मत भी किया और उस शख्स को भी मैं सल्यूट करता हूँ जिस शख्स को आंखों से तो नाबीना था लेकिन फिर भी वो मस्जिद तक पहुंचकर उसने ये बताया कि साउथ कोर्ट के लोग जो हैं वो सारी कम्युनिटी के साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हमें हर हादसे से महफूज रखे और उन लोगों के जिनके बच्चे ज़ाया हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए।